A very good evening to one and all present over here. I, Pooja, welcome all of you in AIF State Webinar Series. ये सीरीज है यूपी, एचपी, महाराष्ट्र, राजस्थान से और इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया है इस बार career counseling, wherein we have discussed yesterday the careers opportunities which the children can opt for in their coming future in +1 and +2 and the streams for which they need to use it. इस AIF वेबिनार में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीति मेहरोत्रा मैम. प्रीति मैम, I welcome you. So dear audience, I welcome you all. Thanks for making your presence with us. आज का ये वेबिनार, I'll just let you know, आज का ये वेबिनार होगा हिंदी में. So 80% of the Hindi will be using as we are at regional place. So we are using regional language. So 80% of Hindi हम use करेंगे और 20% of English. As all of us know, थोड़ी सी comfort हमारे English में बनती है. We'll continue with Hindi and English, both of the languages. So इससे पहले we should proceed. I would like to show all of you एक छोटा सा वीडियो. Let's see कि वो कहाँ तक आपकी लाइफ में कनेक्ट कर पाता है, आप कहाँ तक उस वीडियो से अपने बच्चों को लेके कुछ कनेक्ट कर पाते हैं. Let's watch it together. I work in Post Malaysia. I'm in the advertising line. I do voiceovers. I'm currently a partner in HR outsourcing firm. I was more into the hotel catering and management. My father's a pilot, so thought probably I'd be a pilot. I do not like to take orders, so I thought to myself, the right position is to be a manager or to own your own company. Spoke to my dad and he said, yeah, sure. Actually, he wanted me to join an office, 9-to-5 job, but I think it'd be a much better stable job for you instead of this. We had a military upbringing, so we didn't cross the line, I guess. I wasn't in a very stable position at that time. I want him to do programming, computer programming. Being a parent, you kind of think, okay, you want your kids to go into something which everyone needs. I've got a tax consultant. Well, I need a tax consultant. She's in Mandarin school, so I would imagine that she would want to take translator in Mandarin language or a newscaster in Mandarin language. No, not at all. As parents, of course, we want to have a say in our children's future. No, I don't think so. Not this year. I need to push him more. You have to concentrate on your studies because next year you are going to go to college. I'm afraid that she won't give me to do whatever I want. And Mom, I know you really want me to do computer science and making applications, but I'm sorry to say, but it's just not my calling. she wants me to be a translator actually, because I can speak 3 languages. I think he's always leaned towards maybe accountancy or law. Mom, I need to tell you that I want to be an interior designer. Mom, Dad, I'm sorry I can't go with your decision for what you want from me. And I really just want to do what I want to do, and that is graphic design. Dad, this isn't easy for me to say, but I want to be a journalist. Well,
admire her courage, you know, to actually be truthful about what she wants to do. So I'll have to respect that. Even though if I may have my way, I want her to be something else. But it's entirely her future, and I believe she's on the right path. All right. That's what you want to do. Yeah. Really should. I didn't expect her to watch the video. So Totally didn't know. Big hug. I'd like her to study something that'll make her rich. No, I want her to study what she wants to do. Yes, my dear audience, I'm 101% sure हम कहीं ना कहीं इसको अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में कनेक्ट कर पा रहे होंगे। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने बच्चों के बारे में करियर सोचना चाहते हैं कि उनका करियर आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो उस करियर को बाद में सोचते हैं, उससे पहले ये सोचते हैं कि उससे इनकम कितनी होगी। और इस इनकम के चक्कर में, इस मनी अर्निंग के चक्कर में वी फॉरगेट कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीति मेहरोत्रा मैम। आई वुड टेक यू ऑल ऑफ यू ऑन अ जर्नी ऑफ करियर ऑफ 21st century, wherein we are gonna to discuss about STEM field. So Preeti Mehrotra ma'am, she is an international certified career coach, ICF certified clarity and parenting coach. She's also AIF global master trainer and author. ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। प्रीति मैम, thank you so much for being with us and thank you so much for accepting our invitations. Over to you, Preeti ma'am. Please take us to journey. Okay, thank you, Pooja ma'am, for giving such a brilliant introduction of mine. After seeing video, I just actually want to know how many students have joined in. Just raise your hand so I can get a count of it. Okay, so there are many students. Fine. Have anybody experienced the same way we have watched the video? हमने जैसा, sorry, I'm so sorry. This is regional language. किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो अभी हमने अपने वीडियो में देखा कि करना कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स की कुछ अलग डिमांड्स हैं एंड अल्टीमेटली सरेंडर किया हुआ है? Anybody, just raise hand and be frank, means like honest to yourself. Raised hand, okay. Shraddha, fine. Sometimes प्रीति मैम वही क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे जैसे बोल नहीं पाते, जो जैसे कि हमने वीडियो में देखा, they are not able to express, वो कह नहीं पाते, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। Yeah, so अब तो जैसे अगर आप if you are in 12th तो आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है, बट स्टिल यू हैव अ टाइम। आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपके पास फिर भी टाइम है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वाकई में ये आपकी कॉलिंग है जो आप करने जा रहे हो या नहीं है। तो यू स्टिल हैव टाइम। आज का जो वेबिनार है बेसिकली इट्स अबाउट स्टेम। स्टेम मतलब हम आज साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसमें इमर्जिंग करियर्स क्या हैं। हमने ऑलरेडी स्ट्रीम्स का कल वेबिनार लिया था, उसमें हमने स्ट्रीम्स बताए थे, और आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कि स्टेम सब्जेक्ट मतलब साइंसेस लेके हम कौन से करियर्स अभी आज के ट्रेंड में इमर्जिंग करियर्स के फॉर्म में हैं, कौन से अनयूजुअल करियर्स हैं जो कि स्टेम्स के ही हैं बट हमने कभी सुने ही नहीं है, ना पता था उसके बारे में, और क्या टूल्स होते हैं, कैसे हम पता करें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है या हम क्या चीज कर सकते हैं, कौन सा करियर हम ले सकते हैं या कौन से कॉलेजेस में हमारे लिए बेनिफिट होगा, कौन सा हमें आगे जाना है, इस हम कौन से टूल्स से हम ये जान सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स या फिर हम उसको सबसे लास्ट में लेंगे। सो जस्ट गो थ्रू द वेबिनार और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, अदरवाइज आप हमको ईमेल भी कर सकते हो, तो लेटर ऑन योर क्वेश्चंस विल बी टेकन। अब ये कोट मुझे बहुत पसंद है, चेंज इज इनएविटेबल, ग्रोथ इज ऑप्शनल।
इसका मीनिंग ये होता है कि चेंजेस आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है ना। हम छोटे थे, हम फिर बड़े हुए, अब हम बुढ़े भी होंगे, ऐसे ही नेचर का भी रहता है। तो चेंजेस इज इनएविटेबल, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, बट हमारी ग्रोथ उस चेंज के साथ में, अभी जो चेंज हो रहा है, जैसे अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं उसके हिसाब से, तो डेफिनेटली हम पीछे रह जाते हैं। वो ऑप्शनल है, हमें आगे साथ में बढ़ना है, साथ में चलना है, या फिर हमें नहीं चलना है। तो अगर हम ग्रोथ को ऑप्शनल लेके चलते हैं और चेंज नहीं करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और अगर हम साथ में चलते हैं, अपने अंदर भी चेंजेस लाते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, डेफिनेटली हम उस चेंजेस को अडेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज हम बात करेंगे स्टेम्स करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, कि स्टेम में क्या है और कैसे उसमें करियर अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली स्टेम को पहले समझ लेते हैं। जब हम स्टेम की बात करते हैं तो इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स आ जाता है। ये सारे के सारे एक स्टेम बनाते हैं, ये एक्रोनिम है जिसको हम स्टेम बोलते हैं। इसमें हम साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं, मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, इनोवेशंस पढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं। ये सारी फील्ड्स हम स्टेम करियर्स में देखते हैं। और आज के टाइम में नो डाउट बहुत ज्यादा स्टेम्स के करियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होके बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे, एक ही नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही नहीं है, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम उसको ग्रैप्स कर सकते हैं अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं। स्टेम की फील्ड्स क्या है? स्टेम एक जो है नेचुरल, फिजिकल और लाइफ साइंसेस है, जिसमें कि मेडिसिन भी इंक्लूड होती है, और समटाइम्स उसमें मेडिसिन नहीं भी यूज होती हैं। अगर हम उसमें जा रहे हैं, पीसीबी में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मेडिसिन होती हैं, और अगर हम पीसीएम या उसके कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो नॉन मेडिकल फील्ड्स भी हैं, लाइक कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिसिप्लिन्स भी उसमें आ जाते हैं। ऑल टाइम्स ऑफ इंजीनियरिंग सारा का सारा स्टेम के अंदर ही आता है। मैथमेटिक्स की जो फील्ड है वो भी स्टेम के अंदर आती है, और अब रिसेंटली आर्किटेक्चर को भी मिल गया है कि स्टेम के अंडर में आर्किटेक्चर को भी काउंट करते हैं। नर्सिंग जरूर हम स्टेम्स में नहीं लेते हैं, अनदर फील्ड। Okay, so it's about the emerging career options in the sciences. So let's see what all is there for you all. So next, एक जो career opportunity है सबसे ज्यादा, just a minute, सबसे ज्यादा जो अभी emerging, आज मैं जो बात करूंगी ना बेटा, ये डोमेन्स हैं, ये जो सबसे ज्यादा emerging careers आ रहे हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे करियर्स हैं, लाइक स्टैटिस्टिशियंस जो हैं, ये एक डोमेन हो गया। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी फील्ड्स मिल जाती हैं, लाइक आप हेल्थ और मेडिसिन में, बिजनेस में, फिजिकल साइंसेस में, एनवायरनमेंट में, गवर्नमेंट में, इन सारे जगहों पे अपने आप को इस करियर को चूज कर सकते हो। अब बेसिकली क्या होता है, इसमें एनालिसिस करते हैं डेटा को, इसमें डिसीजंस निकालते हैं। जैसे कि बिग डेटा में क्या करते हैं कि उसको डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसमें उस डेटा को एनालाइज किया जाता है कि ये डेटा सही है, ऑथेंटिक है, नहीं है, तब आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इसमें हम सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करते बट उसको एनालाइज करते हैं। और इसके करियर पाथ्स कैसे, इस पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो मास्टर डिग्री इसके लिए बहुत जरूरी होती है। आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंसेस में, और मैथमेटिक्स इसमें प्रिफर्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं रहेगा तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, बट दीज आर द प्रेफरेबल सब्जेक्ट्स। सेकेंड आ जाता है वेब डेवलपर। अगेन आप बहुत ज्यादा अभी देख रहे होगे कि वेब डेवलपिंग हो रही है, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी क्रिएट हो रहे हैं, आप ये देख रहे होगे कि बहुत सारे एड, ये सब कैसे हो जाता है, लैंडिंग पेजेस की सब बातें करते हैं, तो हाउ इट इज डन। तो इसमें ये भी अभी बहुत ज्यादा इमर्जिंग करियर हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें। लेकिन ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आप वेब डेवलपमेंट से ले सकते हो, या प्रोग्रामिंग किसी वर्क एक्सपीरियंस में, इसमें अगर आप प्रोग्रामिंग में किसी कोई वर्क एक्सपीरियंस लेते हो या फिर इंटर्नशिप करते हो, तो भी इसमें आप अच्छा स्कोप आपको मिल जाता है। अब वेब डेवलपर बनने के लिए आपको क्या, साइंटिफिक क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड चाहिए, मतलब आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप साइंटिफिकली सोच सको, आप उसको
अच्छे से मोल्ड कर सको, उसमें कुछ क्रिएटिविटी डाल सको, अपना कुछ दिमाग उसमें लगा सको। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, तो देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द वेब डेवलपिंग। इसमें आपको लैंग्वेजेस जरूर पे ध्यान देना है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की मैं बात कर रही हूँ, जावा है, C++ है और पाइथन है। अभी रिसेंटली पाइथन का बहुत ज्यादा स्कोप है। इफ यू आर डूइंग एनी सर्टिफिकेशन कोर्स इन पाइथन, आपके पास बहुत सारा स्कोप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बिग डेटा। अभी हम आजकल बहुत सुन रहे हैं। अभी कितने आप लोग ऐसे रियलाइज करते होंगे ना कि आपने मोबाइल में कुछ विंडो शॉपिंग करा या विंडो जस्ट आप देख रहे हो, विंडो जस्ट को स्क्रॉल कर रहे हो, और थोड़े टाइम बाद भी आप देखोगे कि आपको वो सजेशंस आने लग जाते हैं उसके बारे में। तो आपको ये लगता है यार मेरा मोबाइल क्या जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तो इट इज बेसिकली डेटा, द बिग डेटा, द पीपल आर देयर, उन्होंने सॉफ्टवेयर के थ्रू और ऐसा करके कि अपने उनके सारे डेटा, जो भी कस्टमर जो भी वॉच कर रहा है, वो उस पूरा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उससे आपको सजेशंस देते रहते हैं कि ये भी है इसमें, ये भी है, आप इसको भी ले सकते हो। तो दिस इज समथिंग। और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डेटा शेयर करते हैं, उनको डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस की। आप बीटेक से कर लो, बीएससी कर लो या बीसीए कर लीजिए। और इसमें सर्टिफिकेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स से भी आप आगे जा सकते हो, और इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स से भी आप उसमें आगे जा सकते हो। तो बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस, ये जो है ये 3 फील्ड्स इसमें आ जाती हैं आपके, और आपका स्कोप बढ़ाती है। और आज के टाइम में ये बहुत बहुत ज्यादा इमर्जिंग जॉब है स्टेम्स बच्चों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अभी हम क्या करते हैं, घर बैठे बैठे हम देख रहे हैं बहुत सारा, हमने देखा रिमोट। अभी जैसे अगर आप इंदौर उसमें जाओ तो वहाँ पे, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, बट वहाँ पे ट्रैफिक में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, मशीन लर्निंग हो रही है। और बहुत ज्यादा हर जगह पे जो है ना, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब हम सिर्फ एक बटन दबाएंगे और हमारे पास खाना, हमको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी फिजिबल। अभी मैं एक न्यूज़पेपर में एक वो भी पढ़ रही थी, तो उसमें एक जो लेडी है वो हैंडीकैप है, उसकी व्हील चेयर के में सारे कुछ सब कुछ उसमें अरेंजमेंट्स हैं। वो सिर्फ एक वो बटन दबाती है तो वो उसकी व्हील चेयर ऑटोमेटिकली फ्लोर को एडजस्ट कर देती है, जिससे वो उसको दूसरे रूम में या दूसरे एरिया में जाने में प्रॉब्लम ना हो, उसको फूड की प्रॉब्लम ना हो, उसका हैंड और उसका लेग सब कुछ उसी बैलेंस में, उसी के अकॉर्डिंग सारा सेट हो जाता है। तो दिस इज समथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो आने वाले टाइम में बढ़ना ही है। इसमें स्कोप खत्म नहीं होना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हो आप या फिर मशीन लर्निंग करते हो, तो इसका स्कोप टाइम टू टाइम बढ़ते ही जाना है। करियर पाथ इसके लिए कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, यू नीड अ बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद आपको मास्टर्स जरूर उसमें जरूरी है कि आप उसमें मशीन लर्निंग में या कंप्यूटर साइंसेस में या मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री जरूर लें। देन यू हैव अ गुड स्कोप। ऐसा नहीं है कि बीटेक करके नहीं मिलेगा, बट देन अगेन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर, बट बेटर कि आप मास्टर्स करके इसमें आगे जाते हो। एंड यू कैन सी लाइक उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप गेमिंग, फाइनेंस, डेटा सिक्योरिटी, बहुत सारा स्कोप है, जो कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी क्योंकि डेवलप हो रही है, इसमें इसका स्कोप बढ़ना ही है। प्रीति मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास चैट बॉक्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आपने बताया कि करियर पाथ होना चाहिए बीटेक डिग्री का, तो सपोज कि कोई एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहता है या सोशल मीडिया फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या बीटेक डिग्री होनी जरूरी है और या मास्टर ऑफ साइंस होनी जरूरी है? या अभी पूछा मैम, हम आगे उसकी भी बात करेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे, तो उसमें सारा डिग्री का उनको उसमें कौन सी डिग्री से जाना है। हाँ, बट ये है कि इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए आपको ब्रांच लास्ट में चूज करना पड़ता है, बट यू हैव टू डू बीटेक ना। आप अगर इंजीनियरिंग बनना चाह रहे हो, भले वो एग्रीकल्चर हो चाहे कोई भी हो, यू नीड टू डू द बीटेक। फिर 4th ईयर में हमको ब्रांचेस चूज करनी पड़ती है, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी ब्रांच चूज करते हो उसमें। नाउ कमिंग टू द इथिकल हैकिंग, आपने सुना होगा ना, पहले डिटेक्टिव्स होते थे, अभी ये इथिकल हैकिंग जो है और साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग बेसिकली ये डिटेक्टिव्स का ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हैकिंग, आप थोड़ा सा भी अगर आप कहीं से सर्टिफिकेशन ले लेते हो, आप किसी फ्रेंड का हैक कर लेते हो, ये सब इलीगल होता है। और आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो डोंट गेट इनटू ऑल दिस। अगर आप इन सब की वो लेते हो, सर्टिफिकेशन लेते हो, तो आपको लीगल काम करना है। इसमें ब्लैक हैट,
जो होता है वो इलीगल होता है, व्हाइट हैट और जो ब्राउन हैट जो होता है वो लीगल होता है। तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर, और इसीलिए ये इथिकल हैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इतना डेटा ऑनलाइन कलेक्ट हो रहा है ना। अगर उसको कोई हैक कर लेता है तो उसके अंदर किसने हैक किया, कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इफ योर साइट इज हैक्ड तो आप उसमें आगे कुछ काम कर ही नहीं पाते हो। तो ये बहुत सारा बीच में चालू हुआ था, और इसीलिए इस फील्ड की बहुत ज्यादा डिमांड है। और आने वाले टाइम में भी जब, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेंगे, तो इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है। तो दिस इज अगेन द इमर्जिंग फील्ड। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि, और ये 28% तक बढ़ने वाली है। तो करियर पाथ इसमें क्या करना है आपको, कंप्यूटर्स रिकमेंडेड है, क्योंकि आपको उस पर ही काम करना है, आपको हैकिंग करना है। हैकिंग किसने करा वो सब जानना है आपको, ठीक है। और हैकिंग करना मतलब, अगर किसी ने आपका साइट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो जहाँ पे हैकिंग हो गई है उनकी वेबसाइट की, या कुछ और हैकिंग हो गई है, तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि हु हैज डन दैट, कहाँ तक हैकिंग हुई है, पूरा डेटा उसको रिकवर करना कैसे है, वो सारा आप इसमें सीखते हैं। इसमें एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, पूजा या इट इज, इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो कि सर्टिफाइड इथिकल हैकर के नाम से होता है। कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और सर्टिफाइड सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है। फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, दे आर नॉट ओनली इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस, वो पुलिस के साथ भी काम करते हैं, वो क्राइम एरियाज में भी सीबीआई के साथ भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का बहुत बहुत ज्यादा स्कोप आने वाले टाइम में भी और अभी भी है। नाउ रोबोटिक्स, सब लोग अभी आजकल स्कूल्स में भी एक वोकेशनल कोर्स जैसा होने लग गया है, स्कूल्स भी ऑप्ट करने लग गए। तो रोबोटिक्स अगेन आप देख रहे हो कि हर चीज रोबोट्स, आप होटल्स में देख रहे हो कहीं पे एक नया इनोवेशन हुआ है जहाँ पे रोबोट सर्व करते हैं, रोबोट्स ही सारा वर्क काम कर रहे हैं, मशीन का सारा ऑटोमेटिक ऑपरेशन है जो कि रोबोट्स कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में ये क्या हो रहा है कि रोबोटिक इंजीनियरिंग की नीड और नॉलेज डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इसके लिए करियर पाथ अगेन आपको बीटेक मैकेनिकल्स में करना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, या रोबोटिक्स में करना है। तो बेसिकली अगर आप रोबोटिक्स में करते हो, आप अगर आपको रोबोटिक्स में ही जाना है तो डेफिनेटली आपके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। अदरवाइज आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स करके भी इसमें आप आगे मास्टर्स डिग्री लेके इस फील्ड में आ सकते हैं। तो अगेन दिस इज अ इमर्जिंग फील्ड। एरोस्पेस की जो हम बात करते हैं, एरोस्पेस आप सब लोग जानते हो कि आजकल एरोनॉटिक्स या एस्ट्रोनॉटिक्स जो है ना, वो सब लोग को बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है। तो ये भी जो आने वाले टाइम में, ये भी इसका भी फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसमें हम व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और स्पेस सैटेलाइट्स के कैसे ऑपरेशन होता है, इसमें एरोस्पेस जो करते हैं उसमें इस ब्रांच के बारे में लर्न करते हैं, या इस टेक्नोलॉजी के बारे में लर्न करते हैं। अगेन सबके लिए, क्योंकि अभी हम ये जो बात कर रहे हैं ये सारा का सारा इंजीनियरिंग फील्ड से है, तो ये बीटेक इसमें जरूरी होता है। आप बीटेक करोगे और उसके साथ, या फिर आप बी की डिग्री ले लोगे और मैकेनिकल इंजीनियर से ले लो, एरोनॉटिकल से ले लो, एरोस्पेस से ले लो। इन केस कभी आपको नहीं पता था कि एरोनॉटिकल्स भी है, तो अगर आपके पास मैकेनिकल डिग्री, क्योंकि मैकेनिकल एक ऐसी फील्ड होती है जो बाद में हर ब्रांचेस में कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। और एरोनॉटिकल्स अगर आपने डिसाइड ही किया हुआ है कि आपको एरोस्पेस में ही जाना है, so why not to do with the select the branch with the aeronautics। लेकिन अगर किसी ने उस टाइम पे नहीं गाइड किया, and if you have done with the mechanical engineering, there is a scope for you। okay, now coming to the food and agriculture science, अभी मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे एक रिलेटिव आए थे और उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने अपने बच्चे का साइकोमेट्रिक असेसमेंट लिया हुआ था, और उसमें मेरे बच्चे का एग्रीकल्चर आ गया। अब मेरा बच्चा कोई किसान थोड़ी बनेगा, कोई खेती थोड़ी करेगा। पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि वो इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में जितने एडवांसमेंट हो रहे हैं, जितने इनोवेशंस हो रहे हैं, जितने उसमें सारे के सारे टूल्स आ रहे हैं, और जो एक उसको साइंटिफिकली उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, उसमें उनको पता ही नहीं कि उसकी बात कर रहे हैं। उसकी फील्ड उसमें आई थी, ना कि उसको किसान बनाने के लिए फील्ड आई थी। ओके, सो दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड कि फूड और एग्रीकल्चर साइंस में भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसमें अब आजकल इतना ज्यादा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिमांड है, क्योंकि नेचुरल है, हम उनके बगैर तो नहीं रह पाएंगे ना, खाने के बगैर नहीं रह पाएंगे, बट कैसे उसको इजी कर लें। तो इसमें एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी या हॉर्टिकल्चर या डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी आप देखो कि सारे के सारे मशीन से आप मिल्किंग करते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, ये सारा का सारा
पहले नहीं था, अभी इसकी डिमांड बढ़ रही है, अभी टेक्नोलॉजी से हर फील्ड कनेक्ट हो रही है, इसलिए इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसके लिए करियर पाथ क्या है कि लाइक आप बैचलर्स या मास्टर डिग्री करते हो एग्रीकल्चर में, या फिर हॉर्टिकल्चर में, एग्रोनॉमी में करते हो। इन सब फील्ड्स में, मतलब कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, उसमें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप उसी फील्ड में जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। एंड बीटेक और एमटेक डिग्री भी इसमें आप अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से करते हो तो भी वो कंसीडर होती है, वो भी आप उसमें, उससे भी आप एग्रीकल्चर साइंस में जा सकते हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर सकते हो। आजकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इन चीजों को, तो आप उन प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, दोनों में आप अपना करियर एज एग्रीकल्चर साइंस और फूड साइंस देख सकते हो। एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब जगह चल रहा है, यूएन का गोल है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो क्या है ये एनवायरमेंटल साइंस का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये अब एंडलेस टॉपिक्स हैं जो कि आगे बढ़ना ही है। सब लोग, हमारे कंट्रीज जो हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो सारे के सारे कंसर्न हो रहे हैं, वर्ल्ड कंसर्न हो रहा है एनवायरमेंट को लेके, क्लाइमेट को लेके। सो अगेन दिस इज वेरी इमर्जिंग फील्ड, और इसमें आपको बैचलर्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करना है। अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऐसा होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो आप उसको, अगर आप पीसीएम ले रहे हो तो भी ले सकते हो, पीसीबी ले रहे हो तो भी ले सकते हो, उससे भी आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपने 12th में नहीं पढ़ा है तो आपने ग्रेजुएशन में भी ले सकते हो। इसकी आने वाले टाइम में भी बेटा बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, तो इट इज अगेन वेरी इमर्जिंग जॉब कमिंग अप, जिसमें कि आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से या साइंस या बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से और मास्टर्स डिग्री से। मास्टर्स डिग्री ऐसी हो जाती है कि अगर जो भी इसे इंजीनियरिंग कर लिया, जैसे आपने बीटेक कर लिया, कुछ फील्ड्स में मास्टर्स डिग्री आपको बहुत जल्दी जॉब अच्छा दे देती हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपने लेवल पे रिसर्च कर ली। कुछ बच्चे होते हैं वो आगे स्टडी नहीं करना चाहते, तो फिर वो बीटेक करके भी अपनी फील्ड्स में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। बट इफ यू वांट टू गो इन अ रिसर्च एरिया, जैसे एनवायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आपके मास्टर्स डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। बायो इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अगेन बायो इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें मिक्स्ड के बारे में, जैसे कि आप पढ़ते हो ना कि ऑर्गन्स, कईयों को ऑर्गन्स फिट हो रहे हैं या उसमें इंजीनियरिंग टूल्स लग रहे हैं जिसको आप छू सकते, जैसे फॉर एन एग्जांपल बायो का मिक्स करके उसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी मिक्स हो जाती है, तो दैट इज व्हाई इट इज गिवन द नेम ऑफ बायो इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें अगेन आप इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल का कॉम्बिनेशन, इसके लिए आपको PCMB का कॉम्बिनेशन जरूरी है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट बायो एंड इंजीनियरिंग। और नो डाउट अगेन ये बहुत ज्यादा इमर्जिंग फील्ड है। आप देखोगे ट्रांसप्लांटेशन कितने हो रहे हैं, ऑर्गन्स कितने आजकल आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगा देते हैं, स्टर्स लगा देते हैं, इसमें सबके सब में इंजीनियरिंग भी चाहिए और बायो की नॉलेज भी चाहिए। सो दैट इज व्हाई द कॉम्बिनेशन इज PCMB। इसका कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है 10th में, अगर आपको 12th में बायो इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो। नाउ स्पोर्ट्स मेडिसिन कितना होता है ना कि हम देखते हैं क्रिकेट मैच चल रहा है, बीच में किसी उसको लग गई है किसी उसको प्लेयर को, तो जाके फटाफट उसका मसाज करते हैं या फिर उसको कुछ ऑइंटमेंट देते हैं। तो दिस इज कमिंग ऑल मींस आजकल स्पोर्ट्स को कितना वैल्यू मिल रहा है। उसी में आप अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन करते हो तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ वास्ट स्कोप इन दैट। इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन में इंक्लूड होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, मतलब कि आप ब्रेन पे वर्क करते हो। अगर आप साइकोलॉजी आपने लिया हुआ है तो आप उसके प्लेयर के ब्रेन पे कैसे खेलना है, क्या करना है, कैसे टेक्निक है, कैसा माइंडसेट है, उसका बिहेवियर कैसा है, उन सब पे वर्क करते हो। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस जो होते हैं उनकी डाइट पे प्लान करते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं कि अगर उनको चोट लग गई है तो कैसे उनको बिगर मेडिसिन दिए और हर बार कैसे उनको उसमें एक्सरसाइजेस से ठीक करना है, और एथलेटिक्स के कैसे उनको बताना है कि क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है, उनको कैसे अपने आप को फिट रखना है। इसके लिए आपको MBBS होना है फॉलोड बाय MD। आपको आगे MD करना है स्पोर्ट्स मेडिसिन में ही, एंड अदर प्रोफेशंस आल्सो यू कैन गो, दैट इज MSc इन स्पोर्ट्स और मेडिसिन और MA इन स्पोर्ट्स। इवन अभी स्पोर्ट्स से अगर आप MA भी करते हो तो आपके लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाली लाइन जो कि अभी बहुत ज्यादा इमर्जिंग हो रही है वो भी ओपन हो जाती है। इफ यू वांट टू गो इन द, मतलब आपको डॉक्टर नहीं बनना है
तो ये फील्ड बायो वालों के लिए बहुत अच्छी होती है कि वो उनके लिए, अगर उनको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है तो वो इस वाली फील्ड में जा सकते हैं और वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में कोई भी एरिया ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, एनीथिंग दे कैन डू इन दिस फील्ड। नाउ अब हम बात करेंगे मोस्ट अनयूजुअल स्टेम करियर्स। ये सारे तो जो हमने देखा अभी कि सब लोग हमने कहीं ना कहीं सुना हुआ है या देखा हुआ है। ये जो होते हैं ना अनयूजुअल स्टेम करियर, ये हमने बहुत शायद रेयर सुना होगा। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। एक फर्स्ट आता है क्रिप्टोजूलॉजिस्ट। इसमें आपने पढ़ा होगा ना, इसे पहले हम किसी एनिमल के बारे में पढ़ा जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। पहले कभी देखा था किसी ने, पहले हुआ करते थे डायनासोर्स, अभी नहीं होते हैं। तो ये उनके बारे में स्टडी होती है। इसके लिए बेसिकली तो ऐसा कुछ डिग्री नहीं चाहिए कि आपको नहीं ये पर्टिकुलर डिग्री ही चाहिए तभी आप इसमें आ सकते हो, बट इसमें रिसर्च बहुत चाहिए। अगर आपने किसी एनिमल को के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा है तो आपको उसके बारे में रिसर्च करना, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और फिर अथॉरिटीज जो होती हैं जो इनको देखती हैं उधर आपको भेजना। और अगर आपका वो प्रूवन हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजे, आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है, देन यू विल बी टेकन बाय देम एंड यू कैन डिस्कवर एंड यू कैन रिसर्च अंडर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टॉय डिजाइनर, टॉय डिजाइनर क्या होते हैं? आजकल छोटे छोटे बच्चों के टॉयज बनते हैं ना। अब टॉयज पहले जैसे नहीं थे कि लकड़ी के बना दिए या कैसे भी बना दिए, प्लास्टिक के बना दिए, बच्चे को लग गई उससे, नहीं। आजकल बहुत ज्यादा उसमें डिजाइनिंग का वो आ गया है। तो किसी को अगर डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा शौक है या कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव है, इंजीनियरिंग करके भी आप डिजाइनिंग में जा सकते हो। बहुत अच्छी फील्ड होती है। कभी आपको ऐसा लगता हो कि आपने ना ये बहुत अभी इंजीनियरिंग करके बहुत ज्यादा बोर हो गए हो, समझ में नहीं आ रहा, और आपको पेंटिंग और इन सब का क्रिएटिविटी और इनोवेशंस कुछ करने का मन था, तो डेफिनेटली एक जो डिजाइनिंग फील्ड है, और डिजाइनिंग सिर्फ एक ही एरिया में नहीं रहती है। अब जस्ट इमेजिन करो, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो अगर उस पे गया है स्टॉल, उस पे गया है, शॉप पे गया है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं ये ना बुक कवर अच्छा नहीं है, या बॉक्स का कलर अच्छा नहीं है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है। वो छोटे से बच्चे को भी पता है कि उसको कैसा डिजाइन चाहिए। तो जस्ट इमेजिन अबाउट द फील्ड, हर एक चीज का डिजाइन बहुत मैटर करता है। तो एक टॉय डिजाइनिंग है, ये स्कूल्स में जो टॉयज आते हैं बच्चों के, जो जिसके थ्रू उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को, उस पर माइंड करते हैं। और इसमें बस आपको ये चाहिए कि आपका आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, कि आप कुछ अलग करके दिखा रहे हो। तो साइंस, मैथ और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली डिजाइनिंग में आफ्टर बीटेक ऑल्सो यू कैन गो। द टॉय डिजाइनर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोटोटाइप्स। इसमें क्या होता है, प्रोटोटाइप छोटे छोटे आप पहले अपने डिजाइन बना लो और फिर उसको उसमें भेज दो। किसी ने अप्रूव कर दिया, आपकी कंपनी ने, प्राइवेट ने ले लिया, तो डेफिनेटली आपका एक बहुत सक्सेसफुल करियर उसमें डेवलप हो जाता है। नाउ वोल्केनो, दैट इज वोल्केनोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये वोल्केनोज पे वर्क करते हैं। दिस मींस कैसे इमर्ज कर रहे हैं वोल्केनोज। जैसे होता है ना, इरप्शन हुआ, अब ये इरप्शन हो गया, उसके बाद ये जो मैग्मा है या फिर ये जो सॉलिडिफाई हो गया है, जो उसका लावा, उसका क्या हुआ है, कौन से उसमें बना है, कौन सा उसमें लिक्विड बाहर आया है, इस सब की जो रिसर्च होती है, ये भी अगेन बहुत ज्यादा इमर्जिंग फील्ड हो रही है, जिसमें डेफिनेटली आपको जियोलॉजी और ज्योग्राफी, जियोफिजिक्स की जरूर इसमें डिमांड आती है, और अर्थ साइंस के बारे में आपको स्टडी होना बहुत जरूरी है, और आपके अंदर ट्रैवलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक होना चाहिए, तब आप इस फील्ड में जा सकते हो। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, आप में इसमें क्वालिफिकेशन आपको मैथ्स की चाहिए, इंजीनियरिंग एज वेल एज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस। तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी इंजीनियर्स जो होते हैं ना, लाइक डिजाइन के लिए ट्रेन होते हैं, लाइक वो प्लान्स करते हैं और रिएक्टर्स को प्लान करते हैं, प्लानिंग, वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे उसको प्लान करना है, किसी इम्प्लीमेंटेशंस को कैसे करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई वेस्ट है तो उसको कैसे उसको प्लान करके उसको डिस्पोज करना है, ठीक है, वो उस पे वर्क करते हैं। कोई अगर प्लांट है तो अगर बहुत पुराना हो गया तो उसको कैसे कंजर्व करना है, तो उन सब पे जो काम करते हैं वो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में भी, इसमें भी इसका उनका स्कोप है। नाउ स्नेक मिल्कर मीन्स ये जो उसका वेनम निकालते हैं, जो वो कैसे करते हैं, उसका क्या है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें रिसर्च करते हैं। तो इसकी जो एक डिग्री होती है वो बोलते हैं हर्पिटोलॉजी अगर आप करते हो, और इसमें आपको बायोलॉजी के और या बायोलॉजी से आपने किया हुआ है, तो इसमें उसका जो सांप होता है उसका
जहर निकाल के उसको डिफरेंट मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। तो अगेन ये जो सारे करियर्स हैं ये हमने कभी सुने नहीं है, बट ये करियर्स भी बहुत ज्यादा इमर्जिंग हैं और इसमें इतना कम लोग को पता है इसके बारे में, तो बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है। लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी कोई फील्ड होती है। बच्चे सिर्फ स्टेम्स लेके सोचते हैं कि हमें इंजीनियरिंग या डॉक्टर ही बनना है। इसलिए आपको आज मैंने ये अनयूजुअल स्टेम्स करियर बताया। तो स्नेक जो मिलकर होते हैं ये पॉइजन निकाल के उसको डिफरेंट मेडिसिन में यूज किया जाता है। नाउ फ्लेवर केमिस्ट, आपने कई बच्चों को केमिस्ट्री बहुत पसंद होती है ना, लेकिन उनको नहीं पता होता कि केमिस्ट्री करके हम क्या कर लेंगे। तो एक फ्लेवर केमिस्ट होते हैं, ये परफ्यूम्स बनते हैं, जो अपने ड्यूज बनते हैं और इसमें इत्र वगैरह जो बनते हैं, फ्लेवर्स जो बनते हैं, ये सारे का सारा जो अगर किसी ने केमिस्ट्री किया हुआ है तो वो एक फ्लेवर केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जो कि इस फील्ड में भी वो अपना स्कोप को देख सकते हैं। ये फ्रेग्रेंसेस के ऊपर काम करते हैं कि कैसे फ्रेग्रेंसेस को डेवलप करना है, कौन सा प्लांट से लेना है, तो डेफिनेटली उनको उसका नॉलेज होना चाहिए बायो का। स्पेस आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये ह्यूमन स्पेस जो एक्सप्लोरेशन होते हैं उस पे काम करते हैं, ह्यूमन फाइंडिंग्स को पता करते हैं स्पेस में कि कुछ पहले ऐसे हम सुनते हैं ना कि मार्स में ह्यूमंस थे, ऐसा था वैसा था, तो ये उनके बारे में पता करते हैं कि कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस था क्या ह्यूमन का इन प्लैनेट्स पे या नहीं था, उन सब के बारे में इथिकली और फैक्चुअली बात काम करते हैं। Now, music machine learning engineering, again, this is very unconventional emerging careers. अभी आप देखते हो ना कि Spotify देखा होगा ना सबने, Spotify क्या है कि Spotify is actually the music machine learning engineering. ठीक है, इसमें भी अगेन आप उसमें अपना पूरा डेटा उसमें सेट कर देते हो ना, अपना प्लेलिस्ट डिसाइड कर लेते हो, फिर वैसे ही बजता है, iTunes कर लेते हो, ये सारी जो चीजें हैं आप इस फील्ड में जाके कर सकते हो। अगेन इट इज वेरी वेरी इमर्जिंग करियर। ना एक्वेरिस्ट जो होते हैं वो ये काम करते हैं मरीन बायोलॉजी। इसमें क्या होता है कि आप अंडर वाटर काम करते हो, ठीक है, उसमें सर्टिफिकेशन एक कंपलसरी होता है स्कूबा डाइविंग का। अगर आपके पास स्कूबा डाइविंग का सर्टिफिकेट है और आपने इसके अंदर डिग्री लिया हुआ है एक्वेरिस्ट के लिए, तो आप उसके अंदर आपने वो देखा हो ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें कैटरीना कैफ जो थी वो मरीन ड्राइव करके अपना सारा इंस्ट्रक्शन करती थी। वो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देती थी या लोगों को अंडर वाटर डाइव पे ले जाती थी, लेकिन ये लोग मरीन उस पे एनिमल्स पे वर्क करते हैं कि उनको कैसे ब्रीडिंग कराना है, कैसे उनकी कौन सी फूड उनके लिए अच्छा है, उन सब पे वो मरीन एनिमल्स के ऊपर वर्क करते हैं। नाउ स्टॉर्म ट्रैकर, कई बार होता है ना कि ऑल ऑफ सडन आंधी आ गई, तूफान आ गया, सब बर्बाद हो गया और समझ में ही नहीं आया कि कैसा आ गया। तो अभी मीटरोलॉजिस्ट क्या अब पता चल जाता है, अभी हम लोग एडवांस कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि ओडिशा में अब ये वाला यहाँ पे वो आने साइक्लोन आने वाला है। तो ये उस चीजों पे वर्क करते हैं कि उनको पहले से पता चल जाता है, पहले से वो स्टडी कर लेते हैं, उनके पूरी स्टडी करके रखते हैं, लाइक डिग्री ऑफ साइंस ले लेते हैं, मीटरोलॉजी ले लेते हैं, जिसमें उनको पता चल जाता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है या स्टॉर्म कुछ ट्रैक होने वाला है, तो वो उसको पहले से ही ट्रैक कर लेते हैं, वहां से लोगों को वहां से हटा देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप सेफ जगह पे पहुंच जाओ। तो इससे इसकी भी अज्ञान बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी हमारा जितना क्लाइमेट का डिस्टर्बेंस हो रहा है और जितना हमारा एनवायरमेंट का डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे ये सारे जो स्टॉर्म ट्रैकर्स हैं ये सारे की सारी फील्ड्स बहुत ज्यादा इमर्जिंग हो रही है अगेन। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली कैसे पता चलता है ना कि मैं जैसे आपको कैसे मुझे पता है, तो मैं एज अ करियर कोच क्या करती हूँ, जैसे आपने कौन सी डिग्री ले रखी है, आप कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, और मैं आपको गाइड करती हूँ कि इन सब चीजों से आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। अब बच्चे आते हैं मैम इंजीनियरिंग कर लिया, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनके बारे में जान के उनको सही गाइडेंस देके फिर उनको बताया जाता है कि ये फील्ड आपके लिए अच्छी है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन देम कि उनको उस फील्ड में जाना है। तो एज अ करियर कोच क्या होते हैं, करियर कोच आपको हेल्प करते हैं कि आपकी जो स्टडीज आपने जो स्टडीज कर रखी है या 12th या ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रखा है, उसके बाद आप कैसे अपने वर्क उसमें बैलेंस कर सकते हो, कैसे रिसर्च कर सकते हो, कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए ये जॉब फिट है कि नहीं है, उस चीज में आपको हेल्प करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द करियर कोचिंग, जो कि एज अ मतलब आई एम एज अ करियर कोच, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज करियर कोचिंग। प्रीति मैम, yesterday you told us कि एक
कुछ एक पैरामीटर के बेसिस पे और कुछ एक टूल्स के बेसिस पे हम बच्चों से पता कर सकते हैं उनकी नॉलेज और इंटरेस्ट के बेसिस पे या कि उनका आगे फ्यूचर करियर क्या हो सकता है जिसमें वो अच्छा डेवलप कर सकते हैं और सक्सेस भी उनको मिल सकती है। या तो उसके लिए आपने कल बताया था साइकोमेट्रिक टेस्ट। या आई रियली वांट कि आज के ऑडियंस को भी आप उसके बारे में जरूर बताएं। बिल्कुल पूजा मैम, बिल्कुल। आई जस्ट रियली वांट देम टू नो अबाउट द साइक्रोमेट्रिक टेस्ट। तो साइक्रोमेट्रिक टेस्ट बच्चों क्या होता है कि लाइक इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर माइंड में कि इंटेलिजेंस को मेजर करना या आपकी पर्सनालिटी को मेजर करना। तो ये जो टेस्ट होता है इसको साइक्रोमेट्रिक टेस्ट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये आपके माइंड और पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में आपको एनालाइज कर लेता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप ये टेस्ट लेते हो तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका ओरिएंटल स्टाइल क्या है और आपका एप्टीट्यूड किस में, आपकी एबिलिटी क्या है, मतलब क्या आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो आपको भी नहीं पता और कैसे उसमें आगे बढ़ना है, अगर कहीं पे आपकी वीकनेसेस हैं तो उसमें कैसे आगे बढ़ना है। और इवन आपका इमोशनल पोटेंट भी पता करते हैं कि आप इमोशनली कहाँ वीक हो, कैसे आप इसको आगे ले सकते हो। तो दिस ऑल्सो मैटर्स। तो ये बेसिकली साइक्रोमेट्रिक असेसमेंट्स होते हैं इन 5 डायमेंशंस पे। तो मतलब अगर मैं जो साइक्रोमेट्रिक असेसमेंट्स लेती हूँ मैं इन 5 डायमेंशंस पे आपको मेजर करती हूँ, एप्टीट्यूड पे, इंटरेस्ट पे, ओरिएंटल स्टाइल पे, पर्सनालिटी पे और EQ पे। अदरवाइज मार्केट में अगर आप जैसे अभी आपने साइक्रोमेट्रिक असेसमेंट चूज कर लिया, अब आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, फटाफट गूगल करेंगे कि साइक्रोमेट्रिक असेसमेंट क्या होता है और मेरे से बोलेंगे कि मैम ये तो मुझे यहाँ पे ऐसे में मिल रहा है। तो साइक्रोमेट्रिक असेसमेंट्स जो मार्केट में है या तो उनका आप ये पता कर लो कि वैलिडिटी कितनी है उनकी, वो वाकई में आपको 5 डायमेंशंस पे मेजर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ एक ही एरिया बता रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट बता रहे हैं या सिर्फ पर्सनालिटी बता रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एक एरिया जान के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सपोज मान लो आपने एक इंटरेस्ट टेस्ट ले लिया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है मार्केट में और आपने उसको ले लिया, उससे आपको क्या पता चलेगा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पता चलेगा ना। इंटरेस्ट पता करने पर अगर आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, आज मुझे डिफेंस में जाना है लेकिन मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि मैं धूप में खड़े हो पाऊं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा या और टाइम पे मैं कहीं सर्विस दे पाऊं, तो मेरे अंदर उस इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया ना, क्योंकि मेरी एबिलिटी ही नहीं है उसको करने की। तो इसलिए एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस EQ, जैसे कैसे मैं अपना इमोशंस को मेजर मतलब कंट्रोल कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, मैं ब्लास्ट हो जाती हूँ या मैं एकदम चुप रहती हूँ, मैं अपने अंदर ही रखे रहती हूँ, क्या मेरी पर्सनालिटी है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इजीली लोगों के बीच में काम कर लेती हूँ, ये सब मुझे जानना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक डायमेंशंस को जान के आगे नहीं बढ़ सकती, इसीलिए 5 डायमेंशंस पे साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होते हैं ना। अब ये मेजर्स जैसे आप मार्केट में देखोगे तो कई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट, तो कई जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं वो या तो सिर्फ आपको पर्सनालिटी पे बताएंगे या फिर इंटरेस्ट टेस्ट बताएंगे। इससे आपको नहीं पता चलता कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, और जरूरी होता है आपको ये पता करना एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट। अगर कोई भी टेस्ट लेता है, मेरे बच्चे अगर होते हैं तो उसमें बकायदा आपको एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें 34 पेजेस की या 36 पेजेस की आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें आपके बारे में पूरा का पूरा ये जो इंटरेस्ट टेस्ट है इसका मेजर करते हैं, पर्सनालिटी को मेजर करते हैं और पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है जो कि आपके पास भी जाती है और मेरे पास भी आती है। इवन आप किसी और करियर कोच के पास भी जाएंगे और अगर वो सेम डायमेंशंस पे ले रहे हैं तो उनके पास भी वो रिपोर्ट जनरेट होती है और फिर वो आपको गाइड करते हैं कि आपका ये आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये वीकनेसेस हैं, ये स्ट्रेंथ है, ये स्किल्स हैं, आप ऐसे इसमें आगे बढ़ सकते हो, ये डेवलप कर सकते हो, इसमें आप वीक हो। ये सारा मेजरमेंट जो होता है ये आपको साइक्रोमेट्रिक असेसमेंट्स के थ्रू पता चल जाता है। तो दैट इज वाई मैं अवेयरनेस सच में सबको देना चाहती हूँ कि सबको जानना बहुत जरूरी है कि टूल्स हैं जो कि हमें बता सके हमारे लिए राइट करियर क्या है। हम बहुत सारा पैसा ऐसे ही खर्च कर देते हैं मूवीज में, ड्रेस में, पिज्जा में, नूडल्स में। एक बार होटल जाते हैं 1000 रुपए का बिल पे कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब करियर की बात आती है तो या तो पापा ने बोला है तो इंजीनियरिंग कर लो, या फिर मम्मी चाहती है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, या मेरी दीदी ने ये किया है तो सब लोग मैं कर लेते हैं। यू नीड टू सी योर कॉल। अगर आपने अभी भी ऐसा स्टेम ले रखा है बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अभी भी ये जान सकते हो कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है, आप किस किस एरिया में अपने आप को ट्राई कर सकते हो।
तो दिस इज द राइट टाइम। एक 12th क्लास ऐसी होती है, राइट टाइम होती है साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स की। एक 10th होती है जिसमें आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर लेते हो, फिर 12th होती है। और इवन अगर आपको अंडर ग्रेजुएट करने के बाद भी ऐसा लगता है, तब भी आप साइकोमेट्रिक्स के थ्रू ये पता कर सकते हो कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, मैंने MBBS कर लिया, या मैंने बायो ले लिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दी साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स। Thank you so much, Preeti ma'am. Yeah. Just one more thing. Wanted to ask you about this discount which you would like to share with our Yeah. audience. Yeah. So Pooja ma'am, means like I really want my children to get discount जिसने अभी join किया हुआ है। तो अदरवाइज जैसे ये हिडन इसमें होता है, जैसे कई आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे तो आपको बता देंगे कि 2500 में या 3000 में, बट वो हिडन होता है, उनको नहीं पता ये फर्स्ट सिटिंग है, या सिर्फ रिपोर्ट बता देंगे आपको, रिपोर्ट दे देंगे, आपके साथ काउंसलिंग नहीं करेंगे, ऐसा होता है। इसमें जो 4500 है ये डिस्काउंटेड अमाउंट है। इसमें आपको 45 मिनट्स की काउंसलिंग प्लस आपकी डिटेल रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के साथ में, प्लस आपके साथ में डिस्कस होती है। किसी भी बच्चा अगर कोई साइकोमेट्रिक असेसमेंट लेता है और उसमें फर्स्ट सिटिंग में जाते हैं, अगर उनको थोड़ा मतलब साइकोमेट्रिक लेने के बाद भी उनको लाइफ लॉन्ग भी अगर कुछ ऐसा रहता है कि मुझे कुछ डिस्कस करना है या बात करना है, तो डेफिनेटली दे आर फ्री टू कॉल। हर बार एक छोटी सी चीज के लिए उनको दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो दिस इज द अमाउंट समथिंग वेयर दे कैन टेक अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट प्लस काउंसलिंग। Okay. Preeti ma'am, just a little bit few of the questions मेरे पास chat box में personally आ रहे हैं। One of the participant, she's asking कि इसके लिए आपके पास कोई face to face sitting चाहिए या online sitting? Online, everything is online. Okay. Everything is online. Even the psychometric assessment, कुछ भी मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कुछ अपना प्रिपरेशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर पर्सपेक्टिव। मेरे को रेड कलर पसंद है, आपको ब्लू कलर पसंद है, नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसमें एक पर्टिकुलर कलर का पता करते हैं कि मतलब सॉरी पर्सपेक्टिव को पता करते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है और मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। और कितना को टाइम लगता है प्रीति मैम इस टेस्ट को देने के लिए? ये वैसे तो पूजा मैम वीक टाइम हम बच्चे को बोलते हैं खत्म करने के लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करती हूँ और किसी भी बच्चे को सजेस्ट करती हूँ कि वो 2 या 3 दिन में इसको कंप्लीट कर दे। क्योंकि क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बच्चे इसमें। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपने कोई टेस्ट लिया, अब आपने उस क्वेश्चन को अपने पार्टनर से डिस्कस कर लिया या अपने बच्चे 4 और लोगों से डिस्कस कर लिया, तो उन्होंने अपने व्यूज दे दिए और आपने जो उसका आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपने जो आंसर दिया वो आपका खुद का आंसर नहीं हुआ, वो किसी और का आंसर हो गया, तो जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो सही नहीं होगी। इसलिए उनको ये गाइड किया जाता है कि जब आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स ले रहे हो तो आप किसी को बता नहीं रहे हो, किसी को ये नहीं बता रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन है, उसमें क्या करूं, आप अपना खुद सेल्फ वो दे रहे हो। Okay, thank you so much, Preeti ma'am. That was really awesome. मतलब एक STEM जैसी फील्ड में जहाँ पे लोग साइंस और मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ सोचते नहीं है, वहाँ पे भी इतना सारा कुछ आ सकता है, तो दैट्स अ ग्रेट नॉलेज टू शेयर। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपने इतना सब कुछ शेयर किया विद ऑल योर इंफॉर्मेशन एंड जेस्चर्स। So dear participants, I'm just going to unmute you all. मैं आप सबको unmute ऑप्शन पे डाल रही हूँ। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो प्लीज अनम्यूट करके प्रीति मैम से पूछ सकते हैं। You can surely raise your hand. प्रीति मैम, you take up the query. Yeah, sure. In the meanwhile, मैं आप सबके साथ फीडबैक फॉर्म और एक हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है जो कि प्रीति मैम की ओर से है। अगर कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना चाहता है तो वो प्रीति मैम एक रजिस्ट्रेशन लिंक उनकी ओर से है जो मैं शेयर करने वाली हूँ, वो फिल कर सकता है और प्रीति मैम विल बी श्योरली कॉन्टेक्टिंग विद दैट पर्सन। इसके साथ साथ आई विल बी शेयरिंग सर्टिफिकेट लिंक एज वेल। सो प्रीति मैम, ओवर टू यू इन द meanwhile please. Okay, anybody wants to ask any questions, you are free to ask. कुछ भी पूछना है? हमारे ऑडियंस को सब समझ में आ गया लगता है पूजा मैम। अथर्व एक yes अथर्व you can unmute yourself. Yes ma'am. Yes ma'am, how can we learn computer programming languages?
that you have to take either a certification course बेटा, या फिर आप ना अपने, जैसे अभी आप कौन सी क्लास में हो? 9th में हो ना, तो अपने स्कूल में आप ऑप्ट कर लेना, ठीक है? जैसे अभी तो आपके स्कूल में कंप्यूटर्स है, यस मैम। है ना? तो कंप्यूटर्स का एक सब्जेक्ट तो आप अभी पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप 10th से 11th में जाओगे तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कंप्यूटर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आपको ऑप्शंस रहेंगे। तो इफ यू वांट टू गो इन दैट, तो डेफिनेटली गो फॉर द कंप्यूटर सब्जेक्ट, ठीक है? फिर आप सब्जेक्ट को चूज कर लो, उसमें आगे बढ़ो, उसमें फिर लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं, और फिर बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जो आप पर्टिकुलरली अपने टाइम में देख सकते हो कि कौन सी ट्रेंडिंग में कौन सी लैंग्वेज चल रही है। लाइक अभी पाइथन बहुत ज्यादा है, तो आप पाइथन में कर सकते हो, या आपके टाइम में जब तक आप 12th में पहुंचोगे, जब तक बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे डेफिनेटली, तब आप उसमें अपने आप को अपडेट कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। और Yes, कोई क्वेरी? ये साक्षी, यस मैम 10th में कहते हैं कि बेसिक साइंस और बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स होता है, तो क्या आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो? सी स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स मतलब आप जनरल एक कैलकुलेशंस और नंबर्स पे वर्क करते हो, ठीक है? वो बेसिकली, अब ये हो सकता है कि आपके स्कूल में वो ऑप्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आजकल मैथ्स जो है वो ह्यूमैनिटीज बच्चों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है। तो कई बार ऐसा होता है बच्चा सिर्फ मैथ्स में उसको इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो ह्यूमैनिटीज और वो चूज कर लेता है। तो बेसिक मैथ्स के थ्रू में वो अपने साइंसेज में भी जा सकता है, और वो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज को भी चूज कर सकता है। स्टैंडर्ड का डेफिनेटली लेवल हाई हो जाता है 11th 12th में। तो इफ यू रियली हैव अ इंटरेस्ट इन दैट एंड इट इज इजी फॉर यू, देन गो फॉर इट। ओके मैम। गुड इवनिंग। आंसर दिस क्वेश्चन फॉर बेसिक एंड हाँ जी, डॉक्टर शिल्पी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, ma'am. Ma'am, I'm pursuing commerce and my brother is pursuing arts. So, ma'am, आप थोड़ी career options बता दो ताकि हम इन दोनों में कुछ कर पाएं। आपने अब तक सिर्फ साइंस के बताए हैं। बेटा कल का जो वेबिनार है वो नॉन स्टेम पे ही है, वो पूरा का पूरा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज पे ही है। तो यू कैन डेफिनेटली अटेंड दैट वेबिनार एंड गेट नॉलेजेबल अबाउट इट। ओके मैम। कल का हमारा वेबिनार नॉन स्टेम फील्ड पे है और टाइमिंग सेम रहेगा। विल बी हैविंग सेम PMI एंड पासवर्ड 6 to 7। वी आर गोइंग टू मीट अगेन। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रीति मैम, एंड थैंक्स टू AIF प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से हम सब कनेक्ट हो पाए और इतनी नॉलेज शेयरिंग हो पाए। Thanks to our audience. I have already shared the feedback link, certificate link, and the test link from Preeti Ma'am's site. Yeah. Once again, thank you one and all. Let's meet tomorrow with the non-STEM fields career of 21st century. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you, Preeti Ma'am. Okay. Bye.